میرا پروگرام یہ تھا کہ میں حیفا کے سمندر کے کنارے دور ملاحوں کی کسی بھی بستی میں نکل کر ان سے گھل مل کر یہ کھوج لگانے کی کوشش کروں گا کہ وہ قبرص یا اٹلی کی طرف مجھے لے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں سے مسافر بردار سمندری جہاز بھی قبرص اور اٹلی کو جاتے تھے، لیکن اس پر سفر کرنے کے لیے شناختی کارڈ کا ہونا ضروری تھا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ ویسے بھی بندرگاہ پر مجھے پکڑے جانے اور پہچان لیے جانے کے امکانات بہت قوی تھے۔ کپڑے بدلنے کے بعد ہباش نے ناشتہ کیا۔ اس وقت ہم صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں عبرانی زبان کا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سائدہ اور نماش آپس میں گھل مل کر باتیں کر رہی تھیں۔ ہباش ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ٹوسٹ پر مکھن کی پتلی سی تہ جما رہا تھا۔ ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ کر اس نے کافی کی پیالی اٹھائی اور میرے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ الچگول، تم تو ابھی نوجوان ہو، مستقبل تمہارے سامنے ہے، میری طرف سے شادی کی مبارکباد قبول کرو۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اخبار پر نظریں جما دیں۔ ہباش کافی پی رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میری طرف گھور رہا ہے۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھنے کے بہانے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی مجھے تک رہا تھا۔ ہماری آنکھیں ملی تو ہباش مسکرانے لگا۔ بولا، یروشلم میں تمہارا فرنیچر کا بزنس ہے کیا؟ سائدہ یہی بتا رہی تھی۔ ہباش نے کافی کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر مجھے پیش کیا۔ شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ میں نے اسے نارمل انداز میں بتایا کہ میرا بزنس زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن اسے پھیلانے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ ہباش نے ناک سے دھواں نکالتے ہوئے ہنس کر کہا، شادی ہو گئی ہے، اب تو کاروبار پھیلانا ہی ہوگا۔ نماش بولی، میں بھی تو الشکول کی مدد کرتی ہوں، غدان نے تو میرے ٹیلنٹ کو پہچانا ہی نہیں۔ سائدہ کہنے لگی، غدان تمہارے لائق نہیں تھا نماش، میں تو ہباش سے اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ شادی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہباش نے کہا، مگر نماش تم نے کافی نباہ کیا غدان کے ساتھ، بڑی ہمت ہے تمہاری۔ جو شخص پسند نہ ہو اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نماش نے سائدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، مجھے تو تم لوگوں پر رشک آتا تھا، اصل شادی تو محبت کی شادی ہوتی ہے۔ سائدہ نے شرارت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، چلو اب تو تم لوگوں نے بھی محبت کی شادی کر لی ہے، بس اپنی محبت کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ ہباش سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوتی ہیں، کہیں اس نے مجھے پہچان تو نہیں لیا۔ اگر یہ درست تھا تو بڑی خطرناک بات تھی۔ میں اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں ہوشیار ہو گیا تھا۔ اتنی آسانی سے میں ان کی گرفت میں آنے والا نہیں تھا، تاہم پھندا اچانک میری گردن میں پڑ سکتا تھا۔ سگریٹ ایشٹرے میں بجھا کر ہباش انگڑائی لے کر اٹھا اور بولا، میں تو سونے جا رہا ہوں، اور ہاں سائدہ، مہمانوں کے لیے فوڈ سٹور سے ابھی گوشت منگوا لو۔ سائدہ نے کہا، تم کیوں فکر کرتے ہو، میری سہیلی اور اس کا خاوند ہمارے مہمان ہیں، میں ان کے لیے آج خود کھانا پکاؤں گی۔ نماش اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہباش بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ میرے دل میں یوں ہی خیال آنے لگا کہ کہیں وہ بیڈ روم میں جا کر انٹیلیجنس والوں کو فون نہ کر دے۔ میں بے چین سا ہو کر پہلو بدلنے لگا۔ نماش نے بڑی محبت سے میرا بازو تھام کر کہا، تھک گئے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ سائدہ بولی، میں نے تمہارے لیے بیڈ روم صاف کروا دیا ہے، تم دونوں جا کر کچھ دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے، سفر سے تھک گئے ہوگے۔ نماش شرما سی گئی۔ سائدہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، ارے اب تو شادی ہو گئی ہے تو شرماتی کیوں ہو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ نماش بولی، سائدہ تم بڑی بے شرم ہو، چھوڑو مجھے، میں خود چلی جاؤں گی، میں بھلا تمہارے گھر کے دوسرے بیڈ روم سے واقف نہیں ہوں۔ سائدہ نے قہقہ لگایا، ارے تم خود نہیں جاؤ گی، الشکول بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اور وہ ہنستی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ نماش نے مجھے ساتھ لیا اور ڈرائنگ روم کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک بیڈ روم میں آ گئی۔ میں نے کمرے میں آتے ہی کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہاں مجھے اپنا خاوند ظاہر کرنے والی ہو؟ نماش شرارت آمیز نظروں سے تک رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ بیڈ روم بھی سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ سادہ تھی مگر بڑی باذوق اور سلیقہ مند تھی۔ لوہے کا ایک ڈبل بیڈ وسط میں بچھا تھا جس پر کمبل اور ریشمی چادر بچھی تھی۔ دونوں کونوں پر سائڈ ٹیبلز اور ٹیبل لیمپ تھے۔ باتھ روم بھی ساتھ ہی تھا۔ میز پر تھرمس اور 2 گلاس پڑے تھے۔ مشروب کی بوتل بھی تھی۔ انگور کا مشروب ان لوگوں کا قومی مشروب تھا۔ نماش نے میرے لیے مشروب کا گلاس بنانا چاہا مگر میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر اسے منع کر دیا۔ وہ تعجب سے بولی، تم کیسے یہودی ہو کہ قومی مشروب بھی نہیں پیتے؟ ارے یہ تو تمہارے سر درد کے لیے اکسیر ہے۔ میں نے کہا، اس وقت دل نہیں چاہتا، پھر کبھی صحیح۔ نماش بالکل بیویوں والی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میری پوزیشن عجیب و غریب ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا ذہن ہباش کی معنی خیز نگاہوں کے بارے میں بہت حد تک پریشان تھا۔ یہ وسوسہ میرا پیدا کردہ بھی ہو سکتا تھا، تاہم میں اسے غلط بھی نہیں
قرار دے سکتا تھا۔ میں نے نماش سے اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی کہ یہاں سے قبرص یا اٹلی جانے کا پروگرام کس طرح سے بنے گا۔ مشروب کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، وہ میرے پاس ہی پلنگ کی پٹی سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ کہنے لگی اس میں پریشانی اور سوچنے کی کون سی بات ہے بھلا، یہاں سے ہم سمندری جہاز میں 2 سیٹیں بک کروائیں گے اور بحیرہ روم کی سیر کرتے جزیرہ کیپری جا اتریں گے۔ ہباش ہمارے لیے وہاں ہوٹل میں کمرہ فون کر کے بک کروا دے گا۔ میں باقاعدہ سمندری جہاز میں سفر کرنے سے گھبرا رہا تھا اور میری گھبراہٹ حق بجانب تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس والے میرا فوٹو لیے بندرگاہ پر ضرور موجود ہوں گے، میں گیٹ سے گزرتے ہی گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ میں نے نماش کو اس طرح قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے اس کے خاوند کے کرائے کے غنڈے بندرگاہ پر موجود ہوں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ نماش نے ہلکا سا قہقہ لگا کر میرا بازو تھام لیا اور بولی، اس نامراد میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ یہاں تک میرا تعاقب کروائے؟ وہ بس گھر سے باہر چند کوس تک صحرا میں ہی اپنے آدمی بھیج سکتا تھا، یہاں اسے اور اس کے آدمیوں کو کون پوچھتا ہے؟ اور پھر میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ آئی ہوں۔ ہباش کا تحفظ بھی ہمیں حاصل ہے، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بات وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن میں اس راستے پر چل کر اپنی موت کو آواز نہیں دے سکتا تھا جس راستے پر وہ مجھے چلانا چاہتی تھی، مگر میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے فوراً وہاں سے اکیلے فرار ہونے کی کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی اور کچھ محبت کی جھوٹی باتیں کرنے کے بعد میں نے نماش کو سلا دیا اور خود بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ سائدہ ڈرائنگ روم سے گزر کر کچن کی طرف جا رہی تھی، مجھے تعجب سے دیکھ کر بولی، ارے الشکول، تم کیسے خامد ہو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے آئے؟ میں نے شرمیلے سے تبسم کے ساتھ کہا، دراصل وہ سو گئی ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا ذرا باہر کی سیر کراؤں۔ سائدہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی، یہ بات ہے تو ضرور جاؤ، اگر تمہیں جیپ چلانی آتی ہے تو باہر خباش کی جیپ کھڑی ہے، چابی میں لائے دیتی ہوں۔ میں نے کہا، شکریہ، میں پیدل سفر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی اور میں کمانڈر ایس کے خباش کے بنگلے سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ باہر آتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو، جیسے میں آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ارد گرد ایک گہری نگاہ ڈالی کہ کہیں کوئی میری نگرانی تو نہیں کر رہا۔ ایک بات کی مجھے تسلی تھی کہ ہباش نے کسی کو میرے بارے میں فون نہیں کیا تھا، اگر وہ فون کرتا تو اب تک میں حیفا نیول کے کسی تہہ خانے میں الٹا لٹکا ہوتا۔ اس کے باوجود اس امر کا امکان بھی تھا کہ ہباش نے کسی کو فون کر کے میری نگرانی پر لگا دیا ہو، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اس وقت اسرائیل کے سیاسی حالات بھی ایسے تھے کہ فضا میں شک و شبے کے جراثیم گردش کر رہے تھے۔ مجھے وہاں کوئی آدمی دکھائی نہ دیا، چھوٹی سی سڑک دور تک خالی تھی، سامنے بنگلے نہیں تھے، کسی سکول یا مذہبی خانقاہ کی دیوار دور تک چلی گئی تھی، اندر یہودی خانقاہوں اور مذہبی سکولوں کی طرز کا گنبد ابھرا ہوا تھا جس کے اوپر 6 کونوں والے ستارے کا نشان تھا۔ میں اس سڑک کی طرف چلنے لگا جو تھوڑی سی چڑھائی کے بعد شہر کے جدید علاقے کی طرف نکل گئی تھی۔ سڑک کی اونچان پر جا کر میں نے چاروں طرف ایک تائرانہ مگر گہری نگاہ دوڑائی۔ میرے پیچھے حیفا کا جدید اور قدیم گنجان آباد شہر اور اس کی عمارتیں تھیں۔ بائیں جانب 2 منزلہ اپارٹمنٹس کی قطار دور تک چلی گئی تھی۔ چمکیلی دھوپ میں ان اپارٹمنٹس کے سامنے کہیں کہیں بچے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میرے سامنے وہی بنگلے تھے جن میں سے ایک میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کو جو سڑک جاتی تھی اس میں سے ایک سڑک نکل کر نسبتاً ویران علاقے کی طرف چلی گئی تھی۔ میں آبادی والے علاقے میں نہیں جانا چاہتا تھا، چنانچہ اس ویران سی سڑک پر چلنے لگا۔ دوسری جانب ریتیلا میدان تھا، کہیں کہیں کھجور اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ بھی تھے۔ میں اصل میں سمندر کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن کسی ایسے روٹ سے جانا چاہتا تھا جہاں آبادی نسبتاً بہت ہی کم ہو۔ میں شمال مغرب کی طرف چلا جا رہا تھا اور جغرافیائی حدود ضربے کے مطابق سمندر کو اسی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دور ہے۔ حیفا بہت وسیع شہر تھا، اضافی بستیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد ریتیلا میدان ختم ہو گیا اور اس کی جگہ انگور اور آلوچے کے باغ آ گئے۔ آلوچے کی ٹہنیوں پر کہیں کہیں لال لال آلوچے لگے تھے، انگور کی بیلیں لکڑی کی چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ یہاں کچھ مزدور بھی کام کر رہے تھے۔ میں یہاں سے بھی گزر گیا۔ دھوپ میں مسلسل چلنے سے مجھے گرمی لگنے لگی تھی۔ میں نے احتیاطاً اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے نیلا رومال سر پر ڈال رکھا تھا۔ باغ کے آگے ایک کشادہ نالہ آ گیا، اس نالے کے بیچ میں ایک نالی کی شکل میں گندا پانی بہہ رہا تھا۔ دور کوئی کارخانہ تھا جس کی دیوار کے پائپ سے نسواری رنگ کا پانی نالے میں گر رہا تھا۔ یہاں تیزاب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔
शायद ये कोई खाद का कारखाना था। नाले की तरफ कारखाने की दीवार का पिछवाड़ा था। आसमान पर शहरी हवाबाजी का एक छोटा नीला रंग का तैयारा उड़ रहा था। फिर मैंने दूर एक जंबो जेट को नीचे उतरते देखा। मालूम हुआ कि उस तरफ हैफा का एयरपोर्ट था। एक किसान गधे पर सूखी लकड़ियां लादे मेरे करीब से गुजर गया। उसने मेरी तरफ देखने की जहमत भी गवारा न की। अब धूप में शिद्दत आ रही थी। चौड़े गंदे नाले का पुल आ गया। मैं यहाँ से वापस मुड़ गया। यूं चलते रहना मुनासिब न था। मुझे समंदर के बारे में मालूमात साइदा से किसी तौर हासिल करनी होगी। इस तरह चलना फिरना मुझे किसी मुश्किल में मुब्तला कर सकता था। वापस साइदा के बंगले वाली सड़क पर घूमा तो मेरा दिल धक से रह गया। बाहर कमांडर हिबाश की जीप के पास ही एक और नीली जीप खड़ी थी। मैं उल्टे पांव वापस मुड़ गया। कहीं नेवल इंटेलिजेंस ना आ गई हो। कच्ची दीवार के करीब जाकर रुक गया। जहाँ दीवार का साया था, मैं सोचता रहा कि कहीं हिबाश ने सचमुच इंटेलिजेंस वालों को तलब तो नहीं कर लिया। 5 मिनट तक मैं वहीं साये में खड़ा रहा। फिर चलकर मोटर के पास आया और झांक कर देखा। जीप अभी तक वहीं खड़ी थी। मुझे कई किस्म के वसवसों ने घेर लिया। अगर यहाँ से भागता हूँ तो किधर जाऊंगा? मैं एक बिल्कुल अजनबी शहर में था। यहाँ पुलिस स्टेशन भी थे, फौज भी होगी, इंटेलिजेंस वालों का सब ऑफिस या हेडक्वार्टर भी होगा। अभी ये सोच ही रहा था कि मैंने बंगले में से बहरिया के 2 वर्दी पोश जवानों को बाहर निकलते देखा। उनके पीछे पीछे हिबाश भी था। हिबाश ने भी पूरी वर्दी पहन रखी थी। जब ये लोग जीपों में बैठकर सड़क पर दूसरी तरफ चले गए तो मैं धड़कते दिल के साथ बंगले की तरफ बढ़ा। अगर घर में औरतें ही हैं तो मुझे उनसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ से फरार होने से पहले ये जरूर मालूम करना था कि ये लोग किस लिए आए थे और अब किधर गए हैं। बंगले का दरवाजा बंद था। मैंने बटन दबाया। अंदर से मुझे घंटी की दबी दबी आवाज सुनाई दी। दरवाजा सायदा ने खुद खोला। वो मुस्कुरा रही थी। अलचिकोल, अरे तुम इतनी गर्मी में जीप के बगैर ही कहीं चले गए थे? हिबाश तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैं ड्राइंग रूम में आ गया। वो क्यों पूछ रहा था? बोली, आखिर तुम हमारे मेहमान हो, नुमाश के खामद हो और फिर शहर में अजनबी हो। मैं सोफे पर बैठ गया। सायदा मेज पर फलों से भरा हुआ तश्त रखते हुए बोली, वो तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं चौंका, लेकिन अपने जज्बात पर पूरा कंट्रोल किए हुए था। मैंने पूछा कि मुझे किस लिए साथ ले जाने वाले थे? सायदा ने कहा, कहते थे अलचिकोल को लॉन्च में समंदर की सैर करवाऊंगा। देखो आज वो पूरी नींद भी नहीं ले सके। जेटी से आदमी आ गए कि चलें, एक लॉन्च पकड़ी है जिसमें कुछ फलस्तीनी कमांडो भी छुपे हुए थे। एक बार जैसे मेरे जिस्म में ठंडी लहर सरायत कर गई। फलस्तीनी कमांडोज पकड़े गए हैं और हिबाश मुझे साथ ले जाना चाहता है। ये मुअम्मा क्या है? अगर उसने मुझे पहचान लिया है तो फिर मुझे गिरफ्तार करते हुए क्यों हिचकिचा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसने अभी तक मुझे नहीं पहचाना, वरना वो एक लम्हे की भी ताखीर न करता। इस्राएली दुश्मन और खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमान जासूसों के बारे में बहुत मोहतात होते हैं और उन्हें हलाक करने या गिरफ्तार करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। सायदा बोली, तुम नुमाश के पास जाकर आराम करो, खाना तैयार होने में अभी कुछ देर है। तुम किस वक्त खाना खा लिया करते हो? हम तो पूरे 12:30 बजे खाना खा लेते हैं। तुम्हारे लिए ठंडा मशरूब लेकर आऊं? मैंने महसूस किया कि सायदा बहुत बातें करती है। मैंने मशरूब के सिलसिले में माजरत चाही और अकबी दरवाजे का पर्दा हटाकर बेडरूम में दाखिल हो गया। यहाँ ठंडा नीम अंधेरा छाया हुआ था। नुमाश पलंग पर औंधी पड़ी बेसुध सो रही थी। मैं सिंगार मेज के करीब पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अचानक एहसास हुआ कि सायदा उस वक्त अकेली है। उससे समंदर के साहिल के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मैं उठकर बाहर जाने लगा तो नुमाश नींद में बड़बड़ाई। मैंने रुककर उसकी तरफ देखा। उसने पहलू बदला और एक बार फिर नींद की दुनिया में खो गई। मैं बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। किचन में से सायदा की आवाज आ रही थी। वो खानसामा को किसी पकवान के बारे में हिदायत दे रही थी। मैं सोफे पर बैठ गया। सायदा थोड़ी देर बाद रुमाल से हाथ पोंछती किचन के साइड रूम से अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। अचानक मुझे देखकर रुक गई। अलचिकोल, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई मेरे करीब आई। तुम फिर बाहर आ गए। मैंने माथे को सहलाते हुए कहा, सर दर्द कर रहा है, अगर एक प्याली कॉफी बना दो तो। वो बोली, क्यों नहीं, अभी बनवाती हूँ। मगर तुम्हारा सर क्यों दर्द कर रहा है? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए टैबलेट लाती हूँ। किचन को जो रास्ता जाता था वहाँ दीवार के पास एक बड़ा फ्रिज लगा था। सायदा ने उसमें से पानी का जग और सर दर्द की गोलियों की शीशी निकाली। किचन में नौकरानी को कॉफी लाने को कहा। ग्लास में पानी डाला और हथेली पर जर्द रंग की सर दर्द की गोली रखे मेरे पास आकर बोली, बस इस गोली के पेट में जाते ही सर दर्द गायब। टीवी पर इसका इश्तिहार इसी तरह आता है। और हंसने लगी। मैंने गोली हल्क में डालकर पानी पिया और सायदा से कहा कि वो मेरे पास बैठकर बातें करें, शायद इसी तरह मेरा दिल बहल जाए। वो ग्लास मेज पर रखने के बाद जैकेट की जेबों में दोनों हाथ डाले बड़ी शान से एक तरफ को झुककर खड़ी हो गई और तंजन बोली, तो क्या नुमाश से अभी से ही दिल भर गया है? बड़ी चालाक औरत थी। मैंने कहा, अरे नहीं सायदा, ऐसी कोई बात नहीं, मगर नुमाश घोड़े बेचकर सो रही है। बोली, अच्छा बाबा, मैं ही तुमसे बातें कर लेती हूँ, हालांकि ये मेरा किचन आवर है।
अच्छा बताओ कहाँ से फिर कर आए हो? अपने यरूशलेम के मुकाबले में हमारा शहर कैसा लगा? मैंने झट जवाब दिया, सायदा यरूशलेम तो हैफा के मुकाबले में एक पुराना गांव है, बहुत बड़ा सा पुराना गांव। उसने अपना जर्द बालों वाला सर सोफे के पीछे लगा दिया और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। हंसकर कहा, कभी कभी सिगरेट पी लेती हूँ, तुम पियोगे? हिबाश को अमरीकी सिगरेट बड़े सस्ते मिल जाते हैं। मैंने माजरत चाही और हिबाश के हवाले से समंदर की बात शुरू कर दी। यहाँ की बंदरगाह पर तो सारे यूरोप से माल आता है। सायदा होंठ सुकेड़ कर बोली, मगर हिबाश इस किस्म का माल घर पर नहीं लाता। हमें दयानतदारी से अपने नए वतन की तामीर करनी है। मैंने फौरन स्मगलरों की बात छेड़ दी। सायदा ने कहा, अरे बहिरा रूम तो स्मगलरों की जन्नत है। देखो तो एक तरफ स्पेन है, सिसली है, तो उधर इटली है, यूनान और किब्रस है। यहाँ स्मगलिंग नहीं होगी तो और क्या होगा? मैंने उससे जितनी बातें की उनसे मुझे सिर्फ इतनी ही मालूमात हासिल हो सकी कि साहिल समंदर वहाँ से काफी दूर था और स्मगलर वहाँ से भी बहुत दूर एक जगह समंदरी चट्टानों में माल लाते हैं, जहाँ अब हर वक्त बहरिया और कस्टम के सिपाहियों की गश्त जारी रहती है। इसका मतलब था कि स्मगलरों से आसानी से राब्ता कायम नहीं किया जा सकता था। वैसे भी मैं अजनबी था, स्मगलर मुझ पर कैसे भरोसा करते? अगर मैं नोमाश की पोटली से 2-3 हीरे चुरा कर साथ ले जाऊं और स्मगलरों को रिश्वत के तौर पर दूं तो इसकी कोई जमानत नहीं थी कि वो मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे। हीरों के लालच में वो मुझे यरगमाली भी बना सकते थे और कत्ल भी कर सकते थे। मैं अजीब उलझन में मुब्तला हो गया था। एक ख्याल आता कि यहाँ से रात के वक्त वापस फरार हो जाऊं और ऊपर लबनान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करूं, मगर लबनान में जबरदस्त खाना जंगी हो रही थी। वहां से निकलना वैसे ही कार दारत था। सायदा ने सिगरेट का कश लेकर नौकरानी को आवाज दी कि वो कॉफी क्यों नहीं ला रही। फिर वो मुझसे नोमाश के खामद गिदान के बारे में बातें करने लगी। अलशिकोल उसने तलाक इतनी आसानी से कैसे दे दी? वो तो नोमाश के बगैर रह ही नहीं सकता था। अच्छा छोड़ो इन बातों को। वैसे अच्छा हुआ कि नोमाश ने उससे निजात हासिल कर ली। तुम्हें नोमाश ने बता दिया होगा कि गिदान, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे मैं तो हैरान हूँ कि इतनी मुद्दत नोमाश ने उसके साथ गुजारा किस तरह किया। नौकरानी कॉफी की प्याली लेकर आ गई। सायदा ने उसे थोड़ा सा डांटा और हिदायत की कि खानसामा से कहो कि स्टव वाली देचकी से अलग ना हो। जब नौकरानी चली गई तो मेरी तरफ देखकर बोली, हिबाश ने माइक्रोवेव अवन भी ला कर दिया हुआ है, मगर मैं गैस पर ही खाना तैयार करती हूँ। बिजली से तैयार किया हुआ खाना लजीज नहीं होता। मेरी बड़ी बहन तो पकाती ही माइक्रोवेव में है। उसने सिगरेट एस्ट्रे में मसला। बोली, मैं खानसामा के सर पर न खड़ी हूँ तो वो जरूर नमक ज्यादा कर देगा, और मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली। फिर अचानक रुकी और मेरी तरफ देखकर बोली, हिबाश कह रहा था परसों जहाज कैपरी जा रहा है, उसमें वो तुम दोनों की सीटें बुक करवा देगा, लेकिन तुम उसे अपना शनाख्ती कार्ड दे देना। तुम तो जानते ही हो कि यहाँ शनाख्ती कार्ड कितना जरूरी है। और वो चली गई। मेरे पास शनाख्ती कार्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जहन्नम में जाए इसका खामद और शनाख्ती कार्ड। मैं तो लबनान की तरफ से ही फरार होने की कोशिश करूंगा। इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने की ठान कर मैं उठा और बेडरूम में चला गया। सोचा लबनान के बारे में शाम को सायदा या हिबाश से गुफ्तगू करूंगा। शनाख्ती कार्ड के बारे में कह दूंगा कि वो तो यरूशलेम में ही रह गया है। नुमाश जाग पड़ी थी और सिंगार मेज के सामने बैठी हुई अपने बालों में ब्रश कर रही थी। आईने में से मुझे अंदर दाखिल होते देखा तो उठकर मेरे करीब आ गई। उसकी आंखों में अभी तक नींद भरी हुई थी। बोली, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने ख्वाब में देखा कि तुम मुझे एक चट्टान पर ले गए हो और फिर मुझे वहीं छोड़कर तुमने समंदर में छलांग लगा दी। उसने ख्वाब बिल्कुल सच्चा देखा था। मैंने मुस्कुराकर उसके बालों को पीछे किया और तसल्ली दी कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वो पलंग पर बैठ गई और हीरों की पोटली निकाल कर खोली और कहने लगी, मैंने इन हीरों के बारे में सायदा को बिल्कुल नहीं बताया। तुमने तो उससे जिक्र नहीं किया। मैंने आंखें सुकेड़ कर नुमाश को देखा और कहा, मुझे उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे हीरे हैं, तुम जानो। नुमाश एकदम संजीदा हो गई। हीरों की मखमली पोटली उसने पलंग पर एक तरफ रख दी और मेरे बाजू को पकड़ कर बोली, क्या तुम समझते हो कि मैं इन हीरों को तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ? हरगिज नहीं मेरी जान। मैं ये हीरे तो क्या अपनी जान भी तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ। ये तो मैंने इसलिए साथ रख लिए थे कि हम जहाँ भी जाकर नई जिंदगी शुरू करें, तुम्हें मेरी खातिर कोई तकलीफ न उठानी पड़े। जानते हो ये कई लाख के हीरे हैं। हम इटली में एक नया मकान खरीद सकते हैं, एक छोटा सा फार्म बना सकते हैं। मैंने नुमाश का हाथ थामकर उसे प्यार से कहा कि मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था और ये कि मैंने उस पर तंज नहीं किया था। दरअसल मैं इस औरत का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो मुझसे बड़ी सच्ची थी और मुझे दिल से प्यार करती थी। मैंने प्यार की दो बातें की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ख्याल आ गया कि अगर उसे एक पल के लिए मालूम हो जाए कि मेरे दिल में क्या है और मैं असल में कौन हूँ तो खुदा जाने उस पर क्या गुजरे। मुझे सिद्धा की याद आ गई। उसे पता चल गया था कि मैं उसके मुल्क का दुश्मन जासूस हूँ, लेकिन उस बहादुर औरत ने एक सेकंड के लिए भी मुझसे बेवफाई न की। हो सकता है नुमाश को भी अगर इल्म हो जाए कि मैं फलस्तीनी तंजीम की तरफ से इसराइल के खिलाफ जासूसी कर रहा हूँ और जहाँ इसराइल दुश्मन मिशन पर आया हूँ और अब तक इसराइल के कई फौजियों और अफसरों
को हलाक कर चुका हूँ तो वो मुझे माफ कर दे और मुझसे उसी तरह मोहब्बत करती रहे। लेकिन ये नामुमकिन था कि ये राज खुल जाने पर कि मैं उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता वो मुझे माफ कर दे। औरत अपनी मोहब्बत की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं किया करती। नुमाश ने इटली के जजीरे कैपरी जाने की बातें शुरू कर दी। वो असल में अपने खावत के मुल्क से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहती थी। मैंने उसे बताया कि हिबाश एक बहरी जहाज पर हमारी नशिस्तें महफूज करवा रहा है, मगर उसे हमारे शनाख्ती कार्ड चाहिए। मैंने साथ ही कहा कि मैं तो अपना शनाख्ती कार्ड यरूशलेम से साथ लेकर नहीं चला। नुमाश बोली, शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास भी नहीं है। हिबाश से कहेंगे कि वो हमारे शनाख्ती कार्ड बनवा दे, इतना बड़ा अफसर है वो तो एक ही दिन में बनवा देगा। नुमाश ने हीरों को एक बार फिर गिना। अब मैंने हीरों को गौर से देखा। ये छोटे बेर के साइज के थे। ये वाकई बहुत कीमती हीरे थे। इन हीरों के लिए नुमाश का खावंद गिदान अपनी मफरूर बीवी का पीछा कर सकता था। लेकिन मैं हैरान था कि अभी तक इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई थी, और अगर वो चाहता तो अब तक यहाँ बाई एयर पहुंच सकता था। मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि नुमाश का खावंद भी अपनी बीवी से निजात हासिल करना चाहता होगा। नुमाश ने हीरों को पोटली में रखकर उसे कमर से बांध लिया। फिर उसने अपने पर्स में से $1000 के नोट निकाल कर मेरे सामने रख दिए। फिर बोली, इनसे हमारे कैपरी जजीरे तक के अखराजात पूरे हो जाएंगे, क्या ख्याल है? मैंने कहा, ये तो बहुत है। चलो अब इस दौलत की नुमाइश को मुलतवी कर दो और ड्राइंग रूम में आओ। सायदा ने आज हमारे लिए बड़ा उम्दा स्टू पकाया है। वो खुश होकर बोली, सायदा मेरी बड़ी अच्छी सहेली है। खाने के वक्त सायदा का खावंद कमांडर हिबाश भी आ गया। मैंने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उसका चेहरा सपाट था। मेरी जीरक निगाहों ने भी वहाँ किसी मशकूक किस्म का तासुर न देखा। फिर भी दिल में खुदबुद होने लगी। ये शख्स पुरअसरार सा लगने लगा था। वो खाने पर बड़ी शुगुफ्ता मिजाजी का मुजाहरा कर रहा था। हनीमून के हवाले से वो नुमाश को छेड़ता। जब उसे पता चला कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो एक सेकंड के लिए संजीदा हो गया। आंखें सुकेड़ कर एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर चुटकी बजाकर बोला, कोई बात नहीं, मैं नए शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश करूंगा। नुमाश ने हिबाश की प्लेट में मछली का एक टुकड़ा रखते हुए कहा, कोशिश नहीं भाईजान, आपको शनाख्ती कार्ड बनवाने ही होंगे। सायदा ने भी जोर देकर नुमाश की तायद की। हिबाश ने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा और मुस्कुरा कर बोला, मगर तुम्हारा खावंद तो खामोश है, उससे पूछो उसे भी शनाख्ती कार्ड चाहिए कि नहीं। मैंने फौरन अपने आप को मुजतमा किया और बोला, क्यों नहीं, मैं शनाख्ती कार्ड के बगैर अपनी बीवी के साथ कैसे जा सकूंगा। हिबाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे मैं समझा शायद तुम कोई दूसरा प्रोग्राम बना रहे हो। इस पर सायदा और नुमाश ने कदरे ताज्जुब से उसे देखा। सायदा बोली, ये तुमने क्या कह दिया हिबाश? अलचिकोल भला अलग प्रोग्राम क्यों बनाने लगा? नुमाश ने मशरूब का एक घूंट निकला और मेरी तरफ शरारती नजरों से देखने लगी। क्यों अलचिकोल, क्या तुम कोई दूसरा प्रोग्राम बना रहे हो? मैं अंदर से चौंक गया कि ऐसी बात हिबाश के मुंह से क्यों निकली। जल्दी से बोला, हिबाश भाई तो मजाक कर रहे हैं, मुझे अलग प्रोग्राम बनाना होता तो तुमसे शादी ही ना करता। हिबाश जोर से हंसा। बात का मौजू बदल गया, मगर मेरे दिल में अभी तक हिबाश की बात खटक रही थी। कहीं वो मेरे राज से वाकिफ तो नहीं हो गया। अगर वो जान गया कि मैं फलस्तीनी जासूस हूँ तो फिर वो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेता। अजीब कशमकश का माहौल बन गया था। खाने के बाद सब लोग थोड़ी देर नींद करने को बेडरूम में चले गए। मैं भी नुमाश के साथ बेडरूम में आ गया। नुमाश कुछ परेशान थी। वहां से निकल जाने में जितनी ताखिर हो रही थी उसको तरह तरह के वसवसे परेशान करने लगे थे। शनाख्ती कार्ड बनवाने में कितना वक्त लगेगा? मैं खुद अपने वसवसों में घिरा हुआ था। मैं चौंक कर बोला, हिबाश बाअसर ऑफिसर है, मेरा ख्याल है कि 2-1 दिन में तैयार करवा देगा। नुमाश ने मेरे करीब होते हुए कहा, अलशिकोल अब मेरा दिल डरने लगा है कहीं गिदान के आदमी यहाँ न पहुंच जाएं। मुझे उसके खावत के गुंडों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे तसल्ली दी और सो जाने का मशवरा दिया। वो बोली, क्या तुम आराम नहीं करोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, और मैं भी पलंग पर नींद दराज हो गया। नुमाश मुझसे बातें करते करते सो गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं पलंग से उठा और बंगले से बाहर आ गया। दोपहर ढल रही थी। बागीचे में जैतून की शाख पर बैठी एक बुलबुल ने मुझे गर्दन टेढ़ी करके देखा और फिर उड़ गई। मुझे लाहौर वाले अपने पुराने मकान के सहन में उतरने वाली बुलबुलें याद आ गईं। मेरी वालिदा जब सहन में चावल डालती तो चिड़ियों के साथ वहाँ बुलबुलें भी आ जाती थी। मैं बंगलों के आगे फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चलने लगा। जूं जूं उस मकान पर हमें देर हो रही थी, मेरी तशवीश में भी इजाफा होता जा रहा था। सामने से एक किसान गधे के साथ चला रहा था। मैंने कोई ध्यान न दिया। जब वो करीब आया तो उसने होंठों से एक ऐसा लफ्ज निकाला कि मैं अपनी जगह पर सुन होकर रह गया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये वही किसान था जिसको सुबह मैंने नाले की कच्ची सड़क पर गधे के साथ आते देखा था और जो मेरे करीब से मेरी तरफ देखे बगैर चुपचाप गुजर गया था। उसने एक ऐसा खुफिया कोड लफ्ज बोला था जो सिर्फ मुझे, अपनी एजेंट सादिया और डॉक्टर इकाद को ही मालूम था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।